اور جنت البقیع اونچا ہے اور یہ 1925 یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں کہ مزار کس کس تھا، تو یہ ناظرین دل ایک سیدھی سی مٹی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد. تو ناظرین کتنا یہ خوبصورت مزار تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا. تو ایک ہی دروازہ تھا اس کا. لوگ محسوس کرتے تھے کہ وہ جس میں یہ آل سعود نے جب تو یہ پھر مزار ٹوٹے کہ جیسے ان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی ہو. 2026 میں السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں آپ تو خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرے اس چینل کے اوپر آپ کو اسلامک بیان اور اسلامک نالج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتی ہے، پر آج کی ویڈیو بیان کی نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ کی ہم زیارت کریں گے جسے دنیا جنت البقیع کے نام سے جانتی ہے، جس کی زیارت دنیا کا ہر سنی مسلمان کرنا چاہتا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو جنت البقیع کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم پڑے گی کہ 1925 سے پہلے جنت البقیع کس طریقے سے دکھتا تھا اور آج کس طرح سے دکھتا ہے. اور جنت البقیع میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین کون کون جنت البقیع میں دفن ہیں، ان کے نام کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے. ویڈیو میں ان تک بنے رہیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے، اور چینل کو میرے سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اسلامک نالج والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ناظرین آج کی ویڈیو میری زندگی کی شاید سب سے بہترین ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں آپ کو جنت البقیع کے ایسے مناظر دکھانے جا رہا ہوں جو میں کہہ سکتا ہوں حلفاً کہ آج تک آپ نے زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے، نہ انٹرنیٹ پر کوئی ایسی ویڈیو موجود ہوگی. نہیں یقین تو آئیں میرے ساتھ اور ویڈیو مکمل دیکھیں. یقیناً آپ کہیں گے کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. ناظرین جنت البقیع جو آج آپ دیکھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ یہاں تو 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مدفون ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی اولاد، تو کون کون سی اولاد، کون کون سے اہل بیت اور کون کون سے رشتہ دار، اور صحابہ اکرام میں کون کون سے، اتنی بڑی شخصیتیں. تو آج ڈیٹیل سے ہم آپ کو جنت البقیع کے متعلق بتانے جا رہے ہیں. جنت البقیع آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے مٹی ہے، ساری سیدھی ہے، کہیں کہیں پتھر ہے، کہیں کہیں تھوڑے سے ٹیلے ہیں، لیکن جو ڈیٹیل میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں 1925 سے پہلے والے جنت البقیع کی، وہ آپ نے آج تک نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. اور ناظرین یہ وہ وقت تھا کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے تھے، سلام پیش کرنے کے بعد اپنا زیادہ وقت جنت البقیع میں بسر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر کون کون تھا. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جنت البقیع کیسا تھا. ناظرین یہاں سے جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں، یہ دو طرف سے سیڑھیاں داخل ہوتی ہیں، اور جنت البقیع اونچا ہے مسجد نبی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اونچی پہاڑی پر ہی تھا، اور یہ 1925 تک بھی یہ پہاڑی ہی تھی. اور آج اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہ اونچا ہی ہے. یہ جو آپ ایک فضائی منظر دیکھ رہے ہیں یہ AI کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، لیکن اوریجنل ہے سب کچھ. یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے مدینہ شہر میں داخل ہوتے تھے، اور جنت البقیع مدینہ شہر میں نہیں آتا تھا، یہ شہر سے باہر تھا. جی ناظرین آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا جس میں اب پوری مسجد نبی آ چکی ہے. ہم آپ کو ایک ایک مزار کے بارے میں بتائیں گے کہ مزار کس کس تھا، کس کس ہستی کا تھا. تو یہ جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں یہ آل بیت کا تھا. اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. تو یہ ناظرین دیکھیے 1925 تک یہ سارے مزار موجود تھے، اس کے بعد سعودی حکومت نے ان کو توڑوا دیا. تو ابھی جو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں مناظر، یہ بڑے ہی خوبصورت مناظر ہیں، ان کو آنکھوں میں بسا لیجئے، کیونکہ اب وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک سیدھی سی مٹی ہے، پیلی سی مٹی ہے، کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا روضہ دیکھ رہے ہیں یہ 1 نمبر پہ میں نے یہاں پر ایرو سے مارک کیا ہوا ہے. یہاں دیکھ لیجئے اس کے اندر کس کس کی مبارک قبریں تھیں، یہ بھی ہم ابھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. تو ہم نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. یہ والا جو بڑا مزار تھا ان کے اوپر بنا ہوا تھا، اور باقی بھی یہ چھوٹے چھوٹے مزار یہ میں نے آلریڈی مارک کیے ہوئے ہیں. تو شروعات کرتے ہیں
आले बैत से। तो अहले बैत में जी आप ये देखिए इस मज़ार के अंदर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम अली जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये जो 6 नंबर मार्क किया हुआ है, ये एक अलहदा से कब्र मुबारक है। और इस कब्र के ऊपर इस तरह की एक जाली बनी हुई थी। ये जो छोटा मज़ार आपको दिखाई दे रहा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का मज़ार है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां मदफून हैं जी। इसमें हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत रकिया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ इस मज़ार में मदफून हैं। इनके सामने ये जो 2 मज़ार इकट्ठे बने हुए हैं एक जैसे, जिस पे अभी एरो आप देख रहे हैं नीचे वाले में और ऊपर में भी, ये उम्महातुल मोमिनीन का मज़ार है। इसमें 9 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मदफून हैं, जिनके नाम आप ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं। अब ये जो अज़वाज मुतहरात के साथ आपको लेफ़्ट साइड पे मज़ार दिखाई दे रहा है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, जिनमें हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के भाई और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो भी इसी में मदफून थे। एक रवायत में ये है कि साथ हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हो भी इसके साथ थे। ये जो 4 नंबर वाला ये बन रहा है, ये देखें ये दोनों साथ बने हुए थे। तो इसमें ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ मदफून हैं। तो नाज़रीन, जब आप यहाँ से गुज़र के लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो अब 2 रास्ते बनते हैं आजकल में। तो आपको पुराने कब्रिस्तान में भी 2 रास्ते बनेंगे, जिनमें इमाम मालिक इब्ने अनस और इमाम नाफे इब्ने अबी नायान हैं। ये देखिए 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 3 मज़ार बने हुए थे, 1, 2 और ऊपर 3। ऊपर वाला जो मज़ार है वो इब्राहीम इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का। ये देखिए पुराने से भी आपको 2 रास्ते ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये 3 मज़ार बने हुए हैं जो साथ साथ थे। ये 1925 तक ये मज़ार मौजूद थे। यहाँ से आगे चलते हैं तो आगे ये शुहदाए हरा का जो है वो कब्रें हैं सारी एक अहाते के अंदर। इससे अगर आप आगे चलते हैं तो आगे जाके 2 रास्ते फिर बनते हैं, जिसमें सीधा जाएँ तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो, इनका बड़ा मज़ार यहाँ पर मौजूद था, जो कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार के बराबर बड़ा मज़ार था, क्योंकि खलीफा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी दामाद भी और ज़िन्नूरैन यानी 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों से ब्याही ये मज़ार था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो का, जो कि बिल्कुल ये जन्नतुल बकी के आखिर में आता था। ये देखिए ये मज़ार इस तरह था। इसको रीबिल्ड जब हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किया तो ये एग्जैक्ट ये वाली इसकी यही तस्वीर है। तो नाज़रीन, कितना ये खूबसूरत मज़ार था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो का। तो ये मज़ार भी 1925 में गिरा दिया गया था। तो एक ही दरवाज़ा था इसका, लोग दाखिल होते थे, सलाम पेश करने के बाद वापस आ जाते थे। तो अंदर से भी इसका बड़ा एरिया था। जब इस मज़ार को तोड़ दिया गया तो अंदर से कब्र मुबारक जो है अब वो सामने दिखाई देती है। 4 दीवारी मौजूद है, वो ये है कब्र मुबारक। और पीछे आपको रोज़ा मुबारक भी दूर दिखाई देता है। ये जन्नतुल बकी के उस वक्त बिल्कुल आखिर में था। और अब जो आप ये एंड पे लेफ़्ट में देख रहे हैं 2 और छोटे छोटे मज़ारात भी हैं जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो के लेफ़्ट में आते हैं। तो ये किन के हैं ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, इनमें जो एक मज़ार है वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ है, और दूसरा हज़रत साद इब्ने मुआज़ उनका है मज़ार है रज़ी अल्लाह अन्हो का। और हज़रत अबू सईद अल खुदरी, आपको मालूम है कि कितनी अहादीस मुबारक जो हैं वो हज़रत अबू सईद अल खुदरी से हैं। तो ये उन हस्तियों के ये जो है वो यहाँ पर मुबारक कब्रें हैं। तो नाज़रीन, ये जब आप जन्नतुल बकी में दाखिल होते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे जो आपको कुछ और भी मुबारक कब्रें दिखाई देती हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फुफिया हैं हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा और
आतिका बिनते अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह अन्हा। तो ये था नाजरीन जन्नत अल बकी 1925 से पहले जो आप देख रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे मनाज़र थे और लोग महसूस करते थे कि वो एक ऐसी जगह पर आए हैं जो बड़ी मुबारक जगह पर है। बाकी लोगों ने अपनी जो है वो कब्रों के ऊपर ये जो लकड़ी के बॉक्सेस से आपको नज़र आ रहे हैं ये बनाए हुए थे। और ये एक बड़ा आप खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं जन्नत अल बकी का। ये मनाज़र आपको दुनिया के किसी दूसरे चैनल पर नज़र नहीं आएंगे, ये आपको सिर्फ़ अल समद मीडिया पर ही दिखाई दे रहे हैं। और जब सऊदी हुकूमत बनी तो सऊदी जो बादशाह है फिर एक कानून पास किया। ख़ुद ही ज़ाहिर है कि बादशाह तो ख़ुद ही कानून होता है। ये उस अखबार की ख़बर है जी जिसमें ये आले सऊद ने जब ये कानून पास किया था और हुक्म दिया था इन तमाम मज़ारात को तोड़ने का, तो ये फिर मज़ार टूटे, लोगों के दिल आंसू भर गए, लोग अपने आंसुओं को सुखा नहीं सके जब ये लोगों ने मंज़र देखे जो वो सदियों से देखते आ रहे थे। इन मज़ारात का गिरना ऐसा था कि जैसे उनकी सांसों की डोर टूट गई हो। जब ये मज़ार टूटे तो जो एक कब्रों का एक तकद्दस था वो शायद पामाल हुआ। तो उसके बाद से जो मंज़र आप देख रहे हैं वो ये जन्नत अल बकी का आज 2026 में जो आप देखते हैं। कोई मज़ार नहीं है किसी भी कब्र के ऊपर, सब ऐसे ही आपको कब्रें दिखाई देती हैं। और ये पीछे देख लें गुंबद खज़रा, कोई पता नहीं चलता, किसी कब्र के ऊपर कोई नाम नहीं है किसी का भी। ये मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है ताकि आप देख सकें कि जन्नत अल बकी 1925 तक कैसा था और जन्नत अल बकी 2026 में अब ये कैसा है। अल्लाह की मसलहत या जो भी आप कहें, पर हमारा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को हामी नासिर हो। हाँ तो सामान्य नाज़रीन, आपने देखा इस वीडियो में कि जन्नतुल बकी 1925 तक किस तरीके से दिखता था और आज 2026 में किस तरीके से दिखता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, उनकी अहले बैत, उनके जानशीन, उनके सहाबा कहाँ कहाँ जन्नतुल बकी में उनकी मज़ार अक़दस है, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को, हर सुन्नी मुसलमान को ज़िंदगी में कम से कम एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की ज़ियारत, उनके दर पे सलाम करना हर सुन्नी मुसलमान को नसीब हो। और आज जो हमने वीडियो में देखा, अल्लाह हमें जागती आंखों से वहाँ की ज़ियारत करवाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।